Hello, my dear students. As you all know that for the past three presentations, we have been discussing the first chapter, that is Hinduism from English and Communication Skills Semester 1 syllabus. And we are almost done now. Only 3 slides are left. Let's discuss these also to try to understand the whole chapter here. Before starting with the new slide, I want to go back a little bit so that we can catch up with whatever we did last time. See, he was telling us about the Buddhists and the Jains. He said that they also don't depend upon God, but their religion is directed towards the central truth. They say that though they have not seen God, but they have seen the creation of God, the Son of God, that is human beings. And so through the Son, they can move forward towards the Father also. This is the idea of the Buddhists as well as the Jains. Okay, so let's move forward now to the present slide. Now he says, this, brethren, is a short sketch of the religious ideas of the Hindu. He is telling us that this is not just anything. What is this here? This is a short sketch, a brief idea that Swami Vivekananda has given us about the ideas or the religious ideas of Hindus. ठीक है, ये हिंदूज के रिलीजियस आइडियाज हैं. द हिंदू मे हैव फेल टू कैरी आउट ऑल हिज प्लान्स. ऐसा हो सकता है कि वो अपने प्लान्स में फेल हो गया हो, थोड़ा बहुत पूरे सारे प्लान्स वो अपने एग्जीक्यूट नहीं कर पाया हो. But if there is ever to be a universal religion, it must be one which will have no location in place or time. एक ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन अगर कभी बनता है तो it should have one thing very particular is that it should have no location in place or time. ना तो जगह के हिसाब से ना समय के हिसाब से उसकी कोई लोकेशन होनी चाहिए. Which will be infinite like the God it will preach. जिस God के बारे में वो बताता है वो उसी की तरह infinite होना चाहिए, मतलब ना उसका beginning ना उसका end होना चाहिए. And whose sun will shine upon the followers of Krishna and of Christ, on saints and sinners alike. और उसका सूरज, उस धर्म का सूरज सब पर एक तरीके से शाइन करना चाहिए. बी इट कृष्णा और बी इट क्राइस्ट, बी देम सेंट्स और बी देम सिनर्स. चाहे सिनर्स हो, पापी हो या संत हो, कृष्ण को फॉलो करने वाले हो या क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हो, वो सब पर एक समान रूप से आना चाहिए. विच विल नॉट बी ब्राह्मणिक और बुद्धिस्टिक, क्रिश्चियन और मोहम्मदन, बट द सम टोटल ऑफ ऑल दीज. ना तो वो ब्राह्मण को फॉलो करना मतलब ब्राह्मण के लिए हो, ना वो बुद्धिस्ट के लिए हो, ना वो क्रिश्चियंस के लिए हो, ना वो मोहम्मदन्स के लिए हो, बल्कि इन सब के लिए टोटली वो हो. ठीक है. एंड स्टिल हैव इनफाइनाइट स्पेस फॉर डेवलपमेंट. और इसके बाद भी उसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा स्पेस रहना चाहिए. which in its Catholicity will embrace in infinite arms and find a place for every human being, from the lowest groveling savage, not far removed from the brute, to the highest man, towering by the virtues of his head and heart almost above humanity, making society stand in awe of him and doubt his human nature. और वो सबके लिए सबको एम्ब्रेस करने वाला हो, सबको अपने साथ लेके चलने वाला हो, चाहे वो मनुष्य जो है लोएस्ट फॉर्म में हो, है ना, सैवेज आदिकाल में रहने वाला मनुष्य हो, ब्रूट हो मतलब लाइक एनिमल्स हो, या फिर वो ऊंचाई पर पहुंचा हुआ अपनी गुणों से, अपनी अच्छाइयों से, चाहे वो हार्ट की हो चाहे वो हेड की हो, उनसे ऊपर पहुंचा हुआ जो मनुष्य है उसके लिए भी वैसा ही हो, और जो सबसे नीचे है मनुष्य उसके लिए भी वैसा ही हो. ठीक है, ऐसा वो रिलीजन होना चाहिए. ठीक. इट विल बी अ रिलीजन विच विल हैव नो प्लेस फॉर परसिक्यूशन और इनटॉलरेंस इन इट्स पॉलिटी. ना तो उसमें किसी के लिए दोषारोपण करने के लिए कोई जगह रहे, है ना, ना किसी की कमी बताने के लिए, ना असहिष्णुता रहे, मतलब बहुत सहिष्णु धर्म वो होना चाहिए. विच विल रिकग्नाइज डिविनिटी इन एवरी मैन एंड वुमन. हर व्यक्ति में, हर इंसान में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सब में वो ईश्वरीय गुणों को देखे. एंड whose whole scope, whose whole force will be centered in aiding humanity to realize its own true divine nature. और उसका पूरा स्कोप, उसका जो आधार हो, उसका जो गोल हो, उस जो वो अपनी शक्ति लगाए, वो धर्म वो इस बात पर लगाए कि सारी मनुष्य जाति अपना सही सच्चा ईश्वरीय गुण ढूंढ पाए. ठीक है, इस बात में वो फोकस करता हो. ऑफर सच अ रिलीजन एंड ऑल द नेशंस विल फॉलो यू. ऐसा रिलीजन कोई अगर आप ऑफर करेंगे तो सारे देश आपको फॉलो करेंगे.
अशोका's council was a council of the Buddhist faith. अशोक की जो सभा थी वो बुद्धिस्ट फेथ को फॉलो करती थी. अकबर्स दो मोर टू द पर्पस वाज ओनली अ पार्लर मीटिंग. अकबर की थोड़ी सी और ज्यादा थी, बाकी धर्म वाले भी थे, लेकिन वो दिखावे की थी एक सभा. इट वॉज रिजर्व फॉर अमेरिका टू प्रोक्लेम ऑल क्वार्टर्स ऑफ द ग्लोब दैट द लॉर्ड इज इन एवरी रिलीजन. अमेरिका के लिए ये जगह बची थी जहां से वो ये प्रोक्लेम कर सके कि ईश्वर सभी धर्मों के लिए है. अमेरिका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज इस धर्म सभा में आए हैं. इस धर्म सभा में सारे लोग बैठे थे, जोरोएस्ट्रियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट, ज्यूज, है ना, क्रिश्चियन, सभी बैठे थे. इस्लाम को फॉलो करने वाले सभी थे. तो आज अमेरिका की धरती से ये आवाज निकल रही है कि हमें एक ऐसा रिलीजन चाहिए जो कि सारी ह्यूमैनिटी, सारे ह्यूमन रेस के लिए कॉमन हो जाए. May he who is the Brahman of the Hindus, the Ahura Mazda of Zoroastrians, the Buddha of the Buddhists, the Jehovah of the Jews, the Father in heaven of the Christians, give strength to you to carry out your noble ideal. वो बोल रहे हैं जो हिंदुओं के ब्राह्मण हैं, जो जोरोएस्ट्रियंस के अहुरा माजदा हैं, उनके टॉप मोस्ट, बुद्धिस्ट के जो बुद्ध हैं, जो ज्यूज के जेवा हैं, और जो क्रिश्चियंस के लिए फादर इन हेवन है, वो सभी आपको इतनी शक्ति दे सकें, ठीक है, कि आप इस अपने उच्च विचार में सफल हो पाओ. और ये नोबल आइडियल क्या है? आइडियल ऑफ क्रिएटिंग अ वर्ल्ड रिलीजन. एक ऐसे रिलीजन की बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जो सारे संसार के सभी लोग फॉलो. अगर कभी ऐसा हो गया तो कितनी सारी लड़ाइयां, कितने सारे युद्ध तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे. ठीक है, आगे देखिए. द स्टार अरोज इन द ईस्ट. ईस्ट में सूर्य चमका. ठीक है. इट्स ट्रेवल स्टडीली टुवर्ड्स द वेस्ट. और वो धीरे धीरे वेस्ट की ओर बढ़ा. ईस्ट माने हमारी कंट्रीज, एशियन कंट्रीज जो है वो ईस्ट मानी जाती है, और वेस्ट माने वेस्टर्न, आपको पता ही है वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, अमेरिका वगैरह. समटाइम्स डिम्ड एंड समटाइम्स एफल्जेंट. कभी कभी वो धीमी हो गई रोशनी, कभी कभी बिल्कुल चमकी. टिल इट मेड अ सर्किट ऑफ द वर्ल्ड. जब वो पूरी घूम करके एक दुनिया का चक्कर लगा दिया. एंड नाउ इट इज अगेन राइजिंग ऑन द वेरी होराइजन ऑफ द ईस्ट. द बॉर्डर्स ऑफ सानपो आर 1000-fold मोर इफल्जेंट देन इट वाज बिफोर. अब वो फिर से एक जगह ईस्ट में फिर से उग रहा है. एक जगह है सानपो, बॉर्डर्स ऑफ सानपो लिखा है ना, तो एक जगह है, यहाँ पर वो फिर उग रहा है. और यहाँ से हम चाहते हैं कि सभी लोगों में ये धर्म फैले. हेल कोलंबिया. कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट में ही है ये. तो वो बोलते हैं हेल कोलंबिया, मदरलैंड ऑफ लिबर्टी, की जन्मभूमि हो तुम. इट हैज बीन गिवन टू दी. दी मीन्स यू, है ना, ये दिया गया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी गई है. who never dipped her hand in her neighbor's blood. कभी किसी पड़ोसी के खून में तुमने अपने हाथ नहीं रंगे, मतलब तुमने कभी कोई ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ी अननेसेसरी. who never found out that the shortest way of becoming rich was by robbing one's neighbors. जिसने ये कभी नहीं देखा कि दूसरे, मतलब अपने आप को अमीर बनाने के लिए हम अपने नेबर्स को भी रॉब कर सकते हैं, उनको हम लूट के अमीर बन सकते हैं. इट हैज बीन गिवन टू दी टू मार्च एट द वैंगार्ड ऑफ सिविलाइजेशन विद द फ्लैग ऑफ हार्मनी. ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप पूरी मनुष्य जाति को लेकर के एक हार्मोनियस फ्लैग, एक सहिष्णुता, एक शांति का फ्लैग लेकर के पूरी दुनिया में आप एक नए धर्म की स्थापना कर सको. ठीक है. तो ये हेल कोलंबिया किसको कहा? जहां पर ये धर्म सभा चल रही थी, शिकागो में चल रही थी ना, तो वहां के लिए इन्होंने कहा कि आप इस जन्मभूमि को, इस जगह को ये ड्यूटी सौंपी गई है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. मैं आपको बता रही थी कि सिर्फ 3 स्लाइड्स बची हुई हैं. इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है. ठीक है. इस चैप्टर में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और या फिर अगर आप मुझे पर्सनली अगर आप मिलते हैं, जैसे मैं देहरादून के पॉलिटेक्निक में पढ़ाती हूँ, गर्ल्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून में हूँ, तो आप वहाँ के अगर स्टूडेंट है तो आप मुझसे सामने से भी पूछ सकते हैं, फेस टू फेस डिस्कशन कर सकते हैं. और वैसे जो बाहर के बच्चे हैं, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. अगर आपको ये समझ आया तब भी बताइए, जहां पर कहीं डाउट है तो वहां पर भी मुझे आप प्लीज पूछिए. I will be more than happy to help you all. With these words, I bid you goodbye. Take care and study well.